ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 27 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। PCS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ SSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕੇਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੂੰ। ਕੇਨਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਵੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰਿਜਿਜ਼ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਪੁਲ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਉਦਮਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੇਵਿਕਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੋਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਨੇਜਾ ਬ੍ਰਿਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ KBL ਮਾਈਕਰੋ ਮਿੱਤਰ। MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ KBL ਮਾਈਕਰੋ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ। ਮੈਂਗਲੋਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਹॉस्पिटल्स, BDP ਆਫਿਸਿਸ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਯੂਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਪਲੇਸ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ 52 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਦਯੁਤ ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਭਿਆਨ ਪਲਗੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਭਿਆਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਦਾਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ ਔਰ ਅਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਦੁਆਰਾ। RK ਮਾਥੁਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। $10 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਵਰਕਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਲਸਟੀਨ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ
कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स ने की किया अप्रूव किया सैटिंग अप ऑफ एनीमल हसबैंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनीमल हसबैंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा 15,000 करोड़ के नाल, 15,000 करोड़ अमाउंट के नाल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया गुलबाई संग मानरेकर, गुलबाई संग मानरेकर और मध्यवंती दांडेकर नो, मध्यवंती दांडेकर नो। नेक्स्ट है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर यूनियन कैबिनेट ने की किया 2% सबवेंशन दी है, 2% सबवेंशन दी है 12 मंथ के लिए, किस दे ਲਈ और द एलिजिबल बोरोअर्स ऑफ शिशु लोन अकाउंट्स, शिशु लोन अकाउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ एलिजिबल बोरोअर्स ਨੂੰ 12 मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ 2% सबवेंशन प्रदान की गई है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंदर, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंदर। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ माली। रिपब्लिक ऑफ माली ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत NTPC ਨੂੰ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ सोलर पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिता है। ਕਿਹੜੀ कंट्री ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा NTPC ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ कंट्री द्वारा 500 ਮੈਗਾਵਾਟ सोलर पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिता गया, रिपब्लिक ऑफ माली। दूसरे तरीके ਨਾਲ पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक ऑफ माली ने 500 ਮੈਗਾਵਾਟ सोलर पार्क बनाने का प्रोजेक्ट इंडिया की ਕਿਹੜੀ ऑर्गेनाइजेशन ने दिता, NTPC ने। माली की अगर आप गल करिए कैपिटल बमाको है, करंसी ईको चलती है। NTPC की गल करते हैं, NTPC के हैड ने गुरदीप सिंह। नैक्सट है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 36th एशियान समिट, एशियान समिट 36वां एशियान समिट कित्थे हैल्ड किया गया, हनोई वियतनाम दे विच, हनोई वियतनाम दे विच इसनूं हैल्ड किया गया। वर्ल्ड की पहली योगा यूनीवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर वर्ल्ड की पहली योगा यूनीवर्सिटी, इंडिया के बाहर वर्ल्ड की पहली योगा यूनीवर्सिटी नूं LA USA दे विच, लॉस एंजलिस USA दे विच लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया विवेकानंदा योगा यूनीवर्सिटी, विवेकानंदा योगा यूनीवर्सिटी। नेक्स्ट है चाइना। चाइना ने की करया BDU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, BDU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS कह सकते हैं। इस दे लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया, लास्ट सैटेलाइट ने उसमें लॉन्च किया लॉन्ग मार्च रॉकेट के नाल, 3B लॉन्ग मार्च रॉकेट के नाल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किहड़े रॉकेट द्वारा सैटेलाइट में लॉन्च किया गया, 3B लॉन्ग मार्च रॉकेट किहड़ी कंट्री द्वारा, चाइना, या BDU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किहड़ी कंट्री का, चाइना का। नेक्स्ट है इंडिया विल रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ हाई कमीशन इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो सैड पाकिस्तान टू रिड्यूस इट्स हाई कमीशन इन इंडिया टू 50%। इंडिया ने पाकिस्तान को कहा कि असीं तुहाडे देश दे विच इस्लामाबाद दे विच जिहड़ा उत्थे इंडिया दा वल्लों हाई कमीशन है उसकी जिहड़ी स्ट्रेंथ है उसनूं 50% तक रिड्यूस करांगे ड्यू टू किस दे लई, वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन के जिहड़े रूल्स ने ये अच्छे तरीके दे नाल फॉलो नहीं कर रहे, इस दे लई इंडिया की करेगा अपने जिहड़ी हाई कमीशन है उसनूं रिड्यूस करेगा, स्टाफ नूं रिड्यूस कर लेगा। ठीक है जी। सिमिलर तरीके दे नाल, सिमिलर तरीके दे नाल पाकिस्तान नूं कहा कि तुसीं भी साडे देश दे विचों जिहड़ा स्टाफ है उसनूं रिड्यूस करो। नैक्सट है आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिस्कस कर रहे हैं। अज की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के विच सब तो पहले करनाटका, करनाटका दे विच किहड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बादरा, दंदेली, भीमगढ़, चिंचोली और थिमलापारा। बादड़ा, दंदेली, भीमगढ़, चिचोली, थिमलापारा। केरला इदुक्की, नयार, वयानाद, चिनार और मालाबार। इदुक्की डैम भी है, याद रखना केरला के ही इदुक्की डैम भी है, मुल्ला पेरियार डैम भी है। नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वयानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार और मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के विच है। महाराष्ट्र के विच है कोन्या, तंसा, मलवान, ध्यान गंगा, नागजीरा और नवेगांव। नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोन्या और तंसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की। कोन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मलवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान गंगा, नागजीरा और नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश MP के विच सब तो ज़्यादा अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने आप डिस्कस करेंगे ओरछा, पेन, बोरी,
गांधी सागर, नौरा देही, करेरा, शारदा पार, सौन, घड़ियाल। MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ओरछा, पैन, बोरी, गांधी सागर। ओरछा, पैन, बोरी, गांधी सागर। नौरा देही, करेरा, सरदापरा, सौन, घड़ियाल। अच्छा, MP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਕਿਹੜੇ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए किस तरीके ਨਾਲ याद करते थे अपने माधव बांधवगढ़ तो याद किते सी बांधवगढ़, माधव पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार याद रखने ने इस तरीके नाल। नैक्सट आप चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वल। अज की न्यूज़ स्टार्ट करने तो पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेने जो आप कल पूछे थे उन्होंने आंसर्स डिस्कस कर लेने। टूरिज्म मिनिस्टर द्वारा किहड़ा पोर्टल रिलीज़ किया गया सी? स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। इस तो इलावा आप पूछा सी महाबलेश्वर टैंपल कित्थे है? कर्नाटका, बेंगलुरु दे विच। इस तो इलावा कर्नाटका दे विच है महाबलेश्वर टैंपल कित्थे है? कर्नाटका दे विच। स्कीम सी स्वनिधि स्कीम। क्वेश्चन पूछा सी स्वनिधि स्कीम नूं किहड़े बैंक दे नाल मिल के लॉन्च किया गया? सिडबी दे नाल। नैक्सट क्वेश्चन पूछा सीगा अरुण जेटली जी की बुक। अरुण जेटली जी की बुक का नाम सीगा रेनेसेंस। बेसिकली रेनेसेंस नाम सीगा अरुण जेटली जी उत्ते जिहड़ी बुक रिलीज़ की गई सी। ठीक है जी। इस तो इलावा CMs और गवर्नर पूछे सीगे। इस तो इलावा अगर आप गल करिए किहड़े बच्चे ने इसके आंसर काफ़ी अच्छे दिते ने? हरमिंदर बावा नाम के स्टूडेंट ने, हरमिंदर बावा। एक स्टूडेंट होर सी पल्लवी नहार, उन्होंने भी आंसर काफ़ी हद तक सही सी, हालांकि ये बुक गलत सी इन्हों की अरुण जेटली जी वाली। इस तो इलावा बहुत घट बच्चों ने आंसर दिते ने। आंसर दिंदे रहो नाल दी नाल ताकि तुहाडे पता लगता रहे कि सानू किन्नी की तैयारी थोड़ी हो रही है। अज का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग। ड्रग एब्यूज़ और इलिक्ट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट डे ऑब्जर्व किया गया 26 जून नूं। किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 26 जून नूं। इस तो इलावा अगर इस दिन की थीम की गल करिए, इस दिन की थीम रही बैटर नॉलेज फॉर बैटर केयर। बैटर नॉलेज फॉर बैटर केयर इस दिन की थीम रही। 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया सी। 25 जून वाले भी दिन भी आप एक डे डिस्कस कर लें। इस दिन बेसिकली डे ऑफ सी फेरर्स। डे ऑफ सी फेरर्स इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसका हैडकुआटर है लंडन UK ਦੇ ਵਿੱਚ। लंडन UK ਦੇ ਵਿੱਚ इसका हैडकुआटर है और इसको ऑब्जर्व किया गया डे ऑफ सी फेरर। डे ऑफ सी फेरर 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया सी। ठीक है जी। नैक्सट है विच कंट्री विल होस्ट 2023 फीफा वूमेंस वर्ल्ड कप। फीफा दा वूमेंस वर्ल्ड कप। फीफा दा वूमेंस वर्ल्ड कप किहड़ी कंट्री द्वारा होस्ट किया गया? किहड़ी कंट्री द्वारा होस्ट करे? किहड़ी कंट्री होस्ट करेगी? डायरैक्ट क्वेश्चन है कि किहड़ी कंट्री होस्ट करेगी। इवेंट अनाउंस किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन अगर आप गल करिए फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 और 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिल के 2023 का फीफा वूमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। ठीक है जी। फीफा के काफ़ी इवेंट्स आप डिस्कस किए हुए हैं। एक लिस्ट दी हुई जिस प्रोवाइड की हुई है, उस लिस्ट में दोबारा डिस्कस कर लें। ये अपनी लिस्ट आ गई है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर होस्ट करेगा। कतर के दोहा दे विच हेल्ड किया जाएगा। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कैनेडा, USA और मैक्सीको, 3 कंट्रीज़ मिलकर होस्ट करनी है। कैनेडा, USA और मैक्सीको। नैक्सट है अंडर 20 मैनस वर्ल्ड कप। अंडर 20 मैनस वर्ल्ड कप है जोड़ा 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ होएगा, वह इंडोनेशिया होस्ट करेगा। इंडोनेशिया होस्ट करेगा। अंडर 20 सिमिलर है वूमेंस वर्ल्ड कप। मैनस वर्ल्ड कप वूमेंस वर्ल्ड कप 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਹੋਣਾ ਸੀ, पर इसनों पोस्टपोन किया गया कोविड-19 कारण 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। कोस्टारिका और पनामा, कोस्टारिका और पनामा ये 2 कंट्रीज़ मिलकर इसनों होस्ट करनगियां। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ अंडर 17 अंडर 20 ਦੇ इवेंट ਸੀਗੇ, ये अंडर 17 ਦਾ मैनस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा पेरू 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। सिमिलर अंडर 17 वूमेंस वर्ल्ड कप यह भी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ किया जाना सी, पोस्टपोन किया गया 21 ਦੇ ਲਈ। इंडिया होस्ट करेगा, अपना इंडिया होस्ट करेगा। ਕਿਹੜਾ इवेंट इंडिया होस्ट कर रहा है फीफा का? अंडर 17
ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ 17 ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਵੈਂਟ ਹੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਦਾ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਨੋਗਰੇਟਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ CM ਆਫ ओडिशा। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा कौन ने? सब तो पहले नवीन पटनायक। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने। इन्हों के बारे याद रखना है हीरो टू एनीमल अवार्ड पैटा इंडिया द्वारा इन्हों दिता गया। किस द्वारा दिता गया? पैटा इंडिया द्वारा। इस तो इलावा इन्हों द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई थी डेयर डेविल डेमोक्रेट, एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। ये बुक सी इन्हों के फादर के उत्ते बीजू पटनायक के उत्ते। बीजू पटनायक भी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ओडिशा के ही चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। क्वेश्चन वाल चलते हैं कि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के नाल मिल के किसने प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर PADC शॉर्ट फॉर्म के PADC इसनों कहा गया, प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर डेवलप किया गया, इनोग्रेट किया इंडियन ऑयल द्वारा डेवलप किया गया। पैरादीप पोर्ट है उड़ीसा के, पैरादीप एक पोर्ट है उड़ीसा के, उत्थे इसनों बनाया गया, इनोग्रेट किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक के नाल मिलके। किस द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम ते नैचुरल गैस मिनिस्टर। स्टील मिनिस्ट्री भी है। राज्यसभा MP ने मध्य प्रदेश तो। राव इंद्रजीत सिंह की गल करिए प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लस प्लैनिंग मिनिस्ट्री है। गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। गणेशी लाल उड़ीसा के ही गवर्नर ने। उड़ीसा के गवर्नर कौन ने? गणेशी लाल। जगदीप धनकर की गल करते हैं वैस्ट बंगाल के गवर्नर ने जगदीप धनकर। ममता बनर्जी वैस्ट बंगाल के ही चीफ मिनिस्टर ने। वैस्ट बंगाल द्वारा बंगाश्री, शाह सुंदरी और मतिर समृष्टि ये स्कीम्स लॉन्च की गई सीगियां वैस्ट बंगाल द्वारा। रिसेंटली एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी लॉन्च की गई सी वैस्ट बंगाल द्वारा। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया इंडिया का जिस दे विच एविएशन वैदर मोनीटरिंग सिस्टम नूं इंस्टॉल किया गया एट बोथ एंड्स ऑफ रनवे एंड इंस्टॉल्ड 4 दृष्टि ट्रांसमीटर्स टू मेजर विजिबिलिटी रेंज। अगर आप गल करते हैं बैड स्ट्रोम्स की, यानी कि अगर बुरे वैदर की गल करते हैं, मौसम की गल करते हैं, तो जो रनवे होंगे रनवे के उत्ते प्लेन्स रन करते हैं तो उसके लिए ट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं विजिबिलिटी रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और जो वैदर मोनीटरिंग सिस्टम है इन्होंने बोथ साइड दोनों साइड लगाया गया, रनवे के दोनों साइड वैदर मोनीटरिंग सिस्टम लगाया गया। ऐसा इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट केड़ा बन चुका है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कित्थे है? कर्नाटका दे विच है। बेसिकली बेंगलुरु एयरपोर्ट भी कहा जाता है इसनूं। कर्नाटका के बेंगलुरु दे विच है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी, याद रखना है। इस तो इलावा अगर इस एयरपोर्ट की गल करिए, इसमें रिसेंटली एक अवार्ड भी दिता गया सी स्काई ट्रैक्स अवार्ड किसनूं दिता गया सी? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं स्काई ट्रैक्स अवार्ड भी दिता गया सी, याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है? वाराणसी यूपी दे विच। बेसिकली यूपी दे विच है, वाराणसी यूपी दे विच। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात दे विच है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ां गुजरात दे विच ने, याद रखनियां ने। फॉर एग्जाम्पल अगर गल करिए तो इन्हां दा एक स्टैचू है जिहड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का टॉलेस्ट स्टैचू नर्मदा डिस्ट्रिक्ट दे विच है, गुजरात दे विच। अहमदाबाद दे विच की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गल करिए हैदराबाद दे विच है, हैदराबाद दे विच है। इसनूं भी रिसेंटली एक अवार्ड दिता गया सी। अगर आप गल करिए अवार्ड का नाम सी एशिया पैसिफिक ग्रीन प्राइज़, समथिंग इस तरीके का अवार्ड सीगा, एशिया पैसिफिक ग्रीन प्राइज़। यह अवार्ड किसनूं दिता गया सीगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं, या आप कह सकते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट नूं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हर एक नूं पता होएगा कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच है। नैक्सट है
as a part of efforts to fight malnutrition and maternal mortality, which state government has launched Mukhyamantri Matru Pushti Upahar scheme, under which nutrition kits will be provided, which contains ghee jaggery to pregnant women। काफ़ी इंटरस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सब तो पहले एक पुरानी न्यूज़ डिस्कस करते हैं, मैल न्यूट्रीशन के लिए और मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए बेसिकली एक कमेटी डेवलप की गई सी। उस कमेटी का हैड कौन अपॉइंट किया गया सीगा? जया जेटली नूं। ये याद रखना पहले तो जया जेटली नूं अपॉइंट किया गया सी। हुण क्वेश्चन की अपना कि एक स्कीम लॉन्च की गई, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। बेसिकली इसके अंडर न्यूट्रीशन किट्स दित्तियां जाणगियां, जिस दे विच घी होएगा, जैगरी यानी कि गुड़ होएगा, प्रैगनेंट वूमेनस नूं ये चीज़ां प्रोवाइड कीतियां जाणगियां इस स्कीम के अंडर। किहड़ी स्टेट द्वारा यह अनाउंस की गई? त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। इस स्कीम नूं किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना। असम की गल करिए, असम के गुवाहाटी दे विच खेलो इंडिया गेम्स हैल्ड किए गए थे, 3rd एडिशन सीगा। इस तो इलावा अगर आप गल करिए रिसेंटली IIT गुवाहाटी न्यूज़ दे विच रही सी, IIT गुवाहाटी ने फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया सीगा। नागालैंड की गल करिए, नागालैंड के कोहिमा दे विच, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। अच्छा, रिसेंटली इस तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चूज़ किया गया। बेसिकली 8 डिफरेंट स्टेट्स के विचों चूज़ किए जाएंगे, जिस विचों नागालैंड का अनाउंस कर दिता गया सीगा कि किसनूं चूज़ किया गया। उसका नाम कमेंट बॉक्स में दसना है। अज का पहला क्वेश्चन, उसका नाम तुसीं कमेंट बॉक्स के दसना है। मिजोरम की गल करिए, मिजोरम के चपचार कूथ फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। मेघालय के चैरी ब्लूजम फैसटिवल मेघालय के सैलीब्रेट किया गया। नैक्सट है 2-time कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट संजीता चानू गेट्स अर्जुन अवार्ड फॉर 2018 आफ्टर गेटिंग डोपिंग टेस्ट रिमूव। ध्यान नाल सुनना क्वेश्चन कि अर्जुन अवार्ड दिता गया 2018 का, हुण दा नहीं। अगर आप हुण दी गल करिए तो अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड ये सारे अनाउंस किए जाएंगे। इन्हां दे बारे आप डिस्कस किए कि रिकमेंडेशन किहड़े पर्सन नूं रिकमेंड किया गया है, उन्हां दी स्पोर्ट्स डिस्कस की सी। काफ़ी इंटरस्टिंग क्वेश्चन सीगे वो भी। इस तो इलावा आप एक न्यूज़ कुछ दिन पहले डिस्कस की थी कि संजीता चानू नूं पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेना। वेट लिफ्टिंग किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? वेट लिफ्टिंग तो। संजीता चानू नूं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन ने संजीता चानू के उत्ते जिहड़े डोपिंग चार्जिस सीगे ये रिमूव करते तो हुण इन्हां नूं रिमूव करन तो बाद जिहड़ा अर्जुन अवार्ड सीगा इन्हां दा 2018 दे विच इन्हां नूं अनाउंस किया गया सी, वो इन्हां नूं दिता गया। ठीक है। इस तो इलावा याद रखना है 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच गोल्ड मैडलिस्ट ने, 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स दे विच गोल्ड मैडलिस्ट रह चुके ने संजीता चानू। अच्छा, किहड़ी स्टेट, अच्छा क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन अज दा, किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं संजीता चानू? किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं? नैक्सट क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब जिसका हैडकुआटर बेसिकली लंडन दे विच है। लंडन दे विच हैडकुआटर है। इसके पहले फीमेल प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं क्लेयर कॉनर। ब्रिटिश, अगर आप ब्रिटेन की वूमेन क्रिकेट टीम की गल करिए, ब्रिटेन की वूमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं क्लेयर कॉनर। फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा, MCC रिगार्डिंग एक न्यूज़ आप कुछ दिन पहले भी डिस्कस की थी, आई थिंक लास्ट मंथ डिस्कस की थी कि इसके प्रेजिडेंट थे के संगाकारा नूं इसका प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। के संगाकारा पहले प्रेजिडेंट बने थे जिहड़े नॉन ब्रिटिश सीगे, यानी कि ब्रिटेन तो बिलोंग नहीं करते सी। के संगाकारा कित्थों बिलोंग करते हैं? श्रीलंका तो। श्रीलंका के लिए खेलते सी कुमार संगाकारा का नाम याद रखना है। किस लिए खेडते सी? ब्रिटिश के लिए खेडते सी। बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लें। सब तो पहले कैथी सुलीवान के बारे आप डिस्कस किया। ये फर्स्ट वूमेन बने ने जिन्होंने
अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट ਨੂੰ टच ਕੀਤਾ अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट जिसनों ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਆਨਾ ट्रेंच कहने ਆ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਡੀਪ कहने ਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਰੀਆਨਾ ट्रेंच ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਡੀਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ श्योर नहीं ਆ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਚੋਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ USA ਦੇ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ की गल करते हैं स्पेस की गल आई है तो क्रिस्टीना कोच का रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है क्रिस्टीना कोच ने। ये ऐसे वूमेन ने जिन्हों ने सब तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है स्पेस के मैक्सिमम टाइम रहने वाले वूमेन ने क्रिस्टीना कोच। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन्हों के नाम। जेनहाबी फुकान नू फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी। जहनाबी फुकान नू फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया सी। कृतिका पांडे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ दिता गया सी फॉर एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जितया सीगा कृतिका पांडे ने। बेसिकली किहड़ी बुक के लिए द इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इस बुक के लिए इन्होंने यह अवार्ड जितया सी। नेक्स्ट है Which of the following persons are among the 50 celebrated filmmakers and actors invited as the ambassadors for Toronto International Film Festival? काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है भी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल के लिए इन्होंने की करा 50 फिल्म मेकर और एक्टर्स नू इनवाइट कर लिया एज ए एंबेसडर। इस किहड़े इंडियंस ने प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप यानी कि किहड़ा ऑप्शन होएगा अपना 5th ऑप्शन बोथ 2 and 3 प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। डायरैक्टर्स दे विचों अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस दे विचों प्रियंका चोपड़ा नू इस दे विच एज ए एंबेसडर इनवाइट किया गया। ठीक है जी। अच्छा प्रियंका चोपड़ा की गल करिए तो रिसेंटली इन्होंने डेनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिता गया सी। डेनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसनों दिता गया सी? प्रियंका चोपड़ा नू। इस तो इलावा इन्हों यूनीसैफ द्वारा फेस बनाया गया सी। किसका फेस बनाया गया सी? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए प्रियंका चोपड़ा नू इंडिया के विच फेस बनाया गया सी यूनीसैफ द्वारा। दीपिका पादुकोण की गल करिए इन्हों रिसेंटली अगर गल करिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 50th मीटिंग चल रही सी 50th एनिवर्सरी सी। इस दे विच क्रिस्टल अवार्ड किसनों अनाउंस किया गया? दीपिका पादुकोण नूं। इस तो इलावा भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी दीपिका पादुकोण नूं। किस दे नाल? PV सिंधु दे नाल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ पार्टनर्ड विद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंपनी है इस दे नाल पार्टनरशिप की टू अनवील फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रेगनाइट टू रीच मोर जॉब सीकर्स। बेसिकली इंडिया दे विच जिहड़े लेबर है उसनूं स्किल करन दे लई स्किल प्रोवाइड करवाउण दे लई बेसिकली स्किल डेवलपमेंट दे लई एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए IBM के नाल इंडियन मिनिस्ट्री द्वारा पार्टनरशिप की गई। किहड़े मिनिस्टर द्वारा की गई? महेंद्र नाथ पांडे कौन ने? महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP महेंद्र नाथ पांडे ने स्किल बिल्ड रेगनाइट एक प्लेटफॉर्म डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इस कंपनी के नाल पार्टनरशिप की है। प्रहलाद सिंह पटेल टूरिज्म मिनिस्ट्री इन्हों लवे प्रहलाद सिंह पटेल दे लवे इन्हों के बारे एक न्यूज़ डिस्कस कर लें टूरिज्म मिनिस्ट्री के रिलेटेड। अगर आप गल करिए सूँ याद होएगा जो अप्रैल दे विच लॉकडाउन जो स्टार्टिंग की गई सी तो एंगेज करने के लिए इंडिया टूरिज्म के बारे इंक्रीज़ करने के लिए अवेयर करने के लिए वैबीनार सीरीज़ लॉन्च की गई सी देखो अपना देश एक वैबीनार सीरीज़ लॉन्च की गई सी। उसके अंडर सब तो पहले दिल्ली की हिस्टरी बारे दिखाया गया उस तो बाद शायद कोलकाता के बारे दिखाया गया सी। इस तो बाद जिहड़ी हुण न्यूज़ है उस दे विच की कीता इन्होंने वैबीनार दिखाया किस दे रिलेटेड वैदिक फूड
एंड स्पाइसिस, वैदिक फूड और स्पाइसिस के रिलेटेड एक वैबीनार दिखाया गया टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा, याद रखना। इस तो इलावा अगर आप एक न्यूज़ होर डिस्कस कर लें स्पेस के रिलेटेड कि कैबिनेट ने की किया, यूनियन कैबिनेट ने स्पेस दे लई एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इन स्पेस जिसकी फुल फॉर्म होएगी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बेसिकली यह एक सेंटर इसरो द्वारा एक इनिशिएटिव कहा गया जिसनों अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट द्वारा। इस दे नाल की होएगा कि जिहड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने उन्होंने किते ना किते उसकी पार्टनरशिप इंक्रीज़ की जा सके, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की कुछ पार्टनरशिप इंक्रीज़ की जा सके स्पेस एक्टिविटीज़ दे विच प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ नूं एंगेज करने के लिए इस इनिशिएटिव में लिया गया सी इसरो द्वारा और इसनूं यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दी गई। ठीक है जी, यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दी गई है, ये याद रखना है। हुण जिहड़े मिनिस्टर्स ने तीन मिनिस्टर्स बाकी बच गए ने, इन्हां दी मिनिस्ट्रियां प्लस कॉन्स्टिट्यूएंसी कमेंट बॉक्स में दसनी है। काफ़ी ज़्यादा बार आप मिनिस्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं सारिआं नूं ये मिनिस्टर्स याद हो गए होणगे, तो कमेंट बॉक्स दे विच आंसर देने ने। नैक्सट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स द्वारा अनाउंस किया गया कि यह बनाएंगे एक परमानेंट मिलिट्री बेस, इट विल सैटअप इट्स परमानेंट मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशियन। बेसिकली इंडिया की इस हिस्से की गल करते हैं, साउदर्न हिस्से की, तो इत्थे इंडियन ओशियन है, की है इंडियन ओशियन है, तो इत्थे की किया जाएगा एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। इंडियन ओशियन के विच एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की गल की गई है। ये मिलिट्री बेस क्यों बनाया जाएगा? ये कहते हैं कि इन्हों के जोड़े फिशरमैनस वगैरह ने उन्होंने लुट लिया जाता है, लुटेरिया द्वारा उन्होंने नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसके लिए यह एक मिलिट्री बेस बनाएंगे। तो मिलिट्री बेस कित्थे बनाएंगे, किहड़ी कंट्री की मिलिट्री है? ईरान की, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स। अपने तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोप्स किहड़ी कंट्री की मिलिट्री है? ईरान की। या फिर क्वेश्चन दूजे तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि किहड़ी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वह एक परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएगी इंडियन ओशियन दे विच? ईरान। कैपिटल करंसी डिस्कस कर लेने आ। कतर कैपिटल दोहा, करंसी इत्थे रियाल चलती है। कतर कैपिटल दोहा, करंसी रियाल चलती है। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, करंसी रूपी चलती है। ईरान कैपिटल तहरान, करंसी रियाल चलती है। यूएई कैपिटल आबू धाबी, करंसी दिरहम चलती है। सऊदी अरेबिया की गल करिए, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, करंसी इत्थे रियाल चलती है। नैक्सट है अ मोबाइल एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विस, काफ़ी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ई ब्लड सर्विस नूं डेवलप किया गया इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी द्वारा और लॉन्च किया गया किहड़े मिनिस्टर द्वारा? किहड़े मिनिस्टर द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया? बेसिकली एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई ई ब्लड सर्विस। लोगों को मुसीबत के टाइम अगर ब्लड की जरूरत पैंदी है, किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी बीमारी के कारण ब्लड की जरूरत पैंदी है, तो उसनूं जल्दी पहुँचाने के लिए ई ब्लड सर्विस एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई रैड क्रॉस सोसाइटी द्वारा। बेसिकली इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इसनूं डेवलप की गई और लॉन्च की गई हैल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। हैल्थ मिनिस्टर कौन ने अपने इंडिया के? डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर ने। इस दे नाल इन्हां दे साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी है और चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, इन्होंने द्वारा इस मिनिस्ट्री में लॉन्च किया गया। अच्छा, रैड क्रॉस सोसाइटी की गल करिए तो जी बेसिकली रैड क्रॉस सोसाइटी है जिसका हैडकुआटर कितने है? जनेवा स्विट्जरलैंड के विच। इंडियन रैड क्रॉस सोसाइटी उसका एक पार्ट है। तो रैड क्रॉस का बेसिकली हैडकुआटर कितने है? जनेवा स्विट्जरलैंड के विच। अच्छा, रैड क्रॉस के रिलेटेड मई के आप एक डे भी डिस्कस किया, रैड क्रॉस क्रीसेंट डे। रैड क्रॉस क्रीसेंट डे किस दिन ऑबजर्व किया गया? 8 मई को। 8 मई को रैड क्रॉस क्रेसेंट डे भी ऑबजर्व किया गया, ये याद रखना है। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी मिनिस्टर्स ने जिहड़े रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर ने हरिद्वार उत्तराखंड तो ने। स्मृति ईरानी बेसिकली इन्होंने मिनिस्ट्री है
टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री, एक तो टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है और एक WCD यानी कि वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी दे लवे। अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। निर्मला सीतारमन राज्य सभा MP ने कर्नाटका तो, निर्मला सीतारमन राज्य सभा MP ने कर्नाटका तो और इंडिया के फाइनैंस मिनिस्टर ने फाइनैंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री नूं होल्ड कर रहे हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर की गल करिए, सुब्रमण्यम जयशंकर बेसिकली फॉरन मिनिस्टर ने या कह सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। राज्य सभा MP ने यह गुजरात तो राज्य सभा MP ने। नैक्सट क्वेश्चन अगर आप गल करते हैं गुजरात के रिलेटेड ही है, आप डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन रिलीज्ड एनुअल TB रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के नाल ही डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैल्थ मिनिस्टर ने हुणे आप उन्होंने नाम डिस्कस किया है, इन्होंने की किया एनुअल TB रिपोर्ट 2020 में रिलीज़ किया, जिसनों प्रिपेयर किया गया सेंट्रल TB डिवीजन द्वारा। इसने अनाउंस किया कि 2019 के 14% जोड़े केसिस ने TB पेशेंट्स इंक्रीज़ होए ने 14% तक। काफ़ी बुरी गल है कि 2018 तो 2019 की अगर आप गल करिए तो 14% तक TB पेशेंट्स इंक्रीज़ होए ने। तो इन्होंने एक पूरी लिस्ट भी जारी की जिसके अंदर इन्होंने कहा कि किहड़ी स्टेट हाईएस्ट इंक्रीज़ हुई है TB पेशेंट्स दे विच। सब तो ज़्यादा पेशेंट्स TB पेशेंट्स कित्थे इंक्रीज़ होए ने, गुजरात दे विच। सैकेंड प्लेस ते हिमाचल प्रदेश और थर्ड प्लेस ते सैकेंड प्लेस ते आंध्र प्रदेश और थर्ड प्लेस ते हिमाचल प्रदेश रही सी। सैकेंड प्लेस ते आंध्र प्रदेश और थर्ड प्लेस ते हिमाचल प्रदेश रही सी। बेसिकली इन्होंने इस रिपोर्ट नूं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्कस किया, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स और UT। इस तरीके दे नाल इसनूं दस्सिया गया, जिस दे विच लार्ज स्टेट दे विच गुजरात दे विच सब तो ज़्यादा केसिस सीगे, आंध्र प्रदेश सैकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस ते हिमाचल प्रदेश। स्मॉल स्टेट्स दे विच त्रिपुरा और नागालैंड सीगे, जिथे सब तो ज़्यादा केसिस पाए गए TB दे, ट्यूबरकलोसिस दे। और इस तो इलावा UTs की गल करिए, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव UTs दे विच सब तो ज़्यादा केसिस पाए गए TB दे। ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं वर्ल्ड TB डे की, वर्ल्ड ट्यूबरकलोसिस डे, इस दिन भी अपने मई के डिस्कस किया सीगा। कदों डिस्कस किया सी? 24 मई नूं। वर्ल्ड TB डे ऑबजर्व किया जाता है 24 मई नूं। कमेंट बॉक्स के इसकी थीम दसनी है, काफ़ी इंपोर्टेंट थीम सी इसकी। कमेंट बॉक्स के दसनी आप डिस्कस की सी मई के 24 मई नूं वर्ल्ड TB डे ऑबजर्व किया जाता है। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो और क्वेश्चन के आंसर्स जरूर देने ने, जिन्हें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारिਆਂ ਦੇ आंसर देने ने कमेंट बॉक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।